अस्सलाम वालेकुम अली। जी अपनी अस्सलाम की वालेकुम। बात जी अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर। कर दिए? जी मैं कर दिया, आपको होस्ट भी बना दिया और आपका सेट कर दिया मैंने सर। तो अभी वीडियो तो किसी की भी नहीं आ रही। ये सर अभी ऑफ की हुई है। जी साजिद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल चाल है उमर सईद साहब? मैंने पहले भी कर दी। हाउ आर यू सर? उमर सईद साहब फ्रॉम जी जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। वेलकम सर। मैं कहा कैमरे में मुलाकात रह गई हूं, कितने उदा तो नहीं मुलाकात होनी लगता। जी सही है। अस्सलाम वालेकुम सर साजिद मलिक साहब, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, मैं खैरियत से हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मिस कमल, कैसी हैं आप? तो अभी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मैम रेडी हैं, आप शुरू कर सकती हैं। ठीक है, चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum and good afternoon, ladies and gentlemen. I hope you all will be fine. My name is Kamal and I am an associate member of PIPPA and ICAP, also a member of PIPPA Festabad branch committee. I'm really elated to welcome you all to this webinar on self-branding and smart investment, which is organized by PIPPA Festabad branch committee. As we have with us the students and the members of other professional bodies, so I would like to introduce Pakistan Institute of Public Finance Accountants to all of them first. So listeners, PIPFA is an autonomous body recognized mainly in the government sector and established under a license from SCCP. The body is co-sponsored by the Institute of Chartered Accountants of Pakistan, Institute of Cost and Management Accountant of Pakistan, and Auditors General of Pakistan.
It has more than 7,000 members, and a number of them are also the members of ICAP and ICMAP. So basically, the institute was established to produce a second tier of accounting professionals in Pakistan. So let's start with the kind name of Allah, the most gracious, the most merciful. So a few minutes silence for recitation of a few verses from Holy Quran. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Jazakallah. Today's webinar is about self-branding and smart investment. As we all know that self-branding or personal branding is a form of marketing that an individual uses to create a public image that depicts his or her values, traits, and overall reputation. And smart investment is all about what is important for you. So to talk about these all in a detail, we have with us Mr. Sajid Hafiz Malik, the honorable speaker of today's session. He is a presidential award winner as a recognition for his remarkable services in the training industry. He is serving as a leading corporate trainer, education consultant, motivational speaker, language trainer, and a management and marketing professionals. He's also working with the provincial governments on various projects. So we are very elated to have you with us today, sir. Before handing over the session to Mr. Sajid, I would like to mention one thing over here. आप सबके जितने भी क्वेश्चंस या क्वेरीज होंगी वो सारी की सारी हम सेशन के एंड पे जो हैं वो उनको रिप्लाई करेंगे. तो आप लोग मुझे चैट में जाके कमल अहमद सर्च करके आप मुझे अपनी जो क्वेरीज हैं जो क्वेश्चंस हैं वो भेज सकते हैं. So over to you, Mr. Sajid. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है सर, प्लीज कैरी ऑन. इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह व लकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फ़ीहा मा तदऊन नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम. Sadaqallahul Azim. I'm very thankful on the behalf of PICFA, and indeed, as a trainer and consultant, what I have seen all around the world, especially in Pakistan, as I'm dealing with the youth empowerment in different domains, and my most of the time passed with the government bodies, especially the Azad Kashmir government and the Punjab government and a few universities as well. What personally I believe, today the topic selection is marvelous. Whatever you are, you may be the businessman, you may be the individual, you may be the student, the trainer, the teacher, you may be the housewife as well. The one and only unique thing that you have seen all around the world, in your left, in your right, the successful person in all over the world, the one and unique thing is what? Identity. Identity. Your identity. My identity. Viewers, मेरी बात बड़ी तवज्जो से आप इसको सुनिएगा. जब तक
आप अपने ऊपर मेहनत नहीं करते, अपनी इंडिविजुअलिटी के ऊपर मेहनत नहीं करते, और जो स्किल्स आपके पास मौजूद हैं आप उस पर काम नहीं करते, और जब तक आप अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पा रहे होते, द स्ट्रेंथ दैट यू हैव गिवन टू योर अल्लाह एंड द ब्लेसिंग ऑफ स्ट्रेंथ, कि जो कुछ आपके पास मौजूद है, जब आप उस शक्ल को ब्रेक नहीं करते, अपने आप को प्रॉपर्ली सामने लेके नहीं आते, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम महरूम रह जाते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि आज का जो टॉपिक है जिसमें हमने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की बात करनी है, इस इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा ताल्लुक आपकी मॉनेटरी सेंस से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक आपकी स्किल्स और टैलेंट के साथ है, आपकी वैल्यूज के साथ है, आपके मिशन के साथ है, आपके कैरेक्टर के साथ है। और एक बात और याद रखिएगा कि जब भी हम बात करते हैं ना सेल्फ ब्रांडिंग की, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। नॉर्मली आई एम ऑब्सेस्ड विद द ट्रांसफॉर्मेशन, द ड्रीम that you have in your brain, in your head and in your heart, to turn into the physical reality. अब जो कुछ भी आपके ज़हन में होता है, ठीक है ना, जो कुछ भी आपके दिमाग में, आपके दिल में होता है, जब तक आप उसको फिजिकल रियलिटी में लेके नहीं आते, आप उसको मूव नहीं करवाते, ये एक ड्राइविंग फोर्स है, तो आप जिंदगी में कामयाब भी नहीं होते। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, वन ऑफ द strong wish that you have right now in your mind and your soul is what about yourself? If you talk about an inclusive that brand, तो जब हम सेल्फ ब्रांडिंग की बात करते हैं, तो आपके पास कोई अपना विजन, अपना गोल, कोई अपना मिशन, कोई अपने वैल्यूज, कोई अपनी स्किल्स, कोई अपना ऐसा हिडन स्कोप, आई मीन टू से इंटेंशन, एम्बिशन, डिजायर कि आपके पास है कि आप आइंदा 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद कहां स्टैंड करेंगे। और अगर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैवंट एनी डिजायर, इट मीन्स कि ये एक क्वेश्चन मार्क है हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर। तो याद रखिए, आप जब तक अपने ऊपर गौर नहीं करते, हालांकि मैं ये समझता हूं इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सिटिंग अक्रॉस द टेबल। मैं आपसे मुखातिब हूं, आप मुझे बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो क्वालिटीज और जो चीजें मैं अपने अंदर रखता हूं, चाहे वो मेरे जीन में ट्रांसफर होके आई हैं, चाहे वो मैंने एनवायरनमेंट से सीखी हैं, और जो चीजें आपके पास हैं, जब तक हम इनको प्रॉपर्ली चैनलाइज नहीं करते, एक्सपोज नहीं करते, तो हम इसमें कामयाब भी नहीं होते। तो आज हम कोशिश करेंगे कि वो सारी चीजें जो सेल्फ ब्रांडिंग से रेलिवेंट है और जो जिसमें हमारी किस हद तक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, हम उस पर तफसील से बात कर सकें। तो इसको हम थोड़ा मूव करते हैं। ये हमारे सेशन हाइलाइट्स हैं, जो आपके उस पे ब्रोशर भी मौजूद था, पोस्टर भी मौजूद थे। स्पेस फॉर ब्रांडिंग, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, सेल्फ ब्रांडिंग एंड ब्रांडिंग टूल्स, रैपिड लर्निंग मोड, ग्लिम्पसेस ऑफ द एक्सीलेंस, कंफर्ट जोन वर्सेस अपॉर्चुनिटी जोन, मैपिंग टूल्स, नेटवर्किंग द वैल्यू एडेड, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, टाइम एलिमिनेशन, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट एंड पोटेंशियल मैनेजमेंट। हम इसको बकायदा जब सेल्फ ब्रांडिंग की हम बात करते हैं, इटसेल्फ सेल्फ ब्रांड बेसिकली है क्या? Basically, it's the intention. The intention that you have in your heart. Whatever you have in your heart, just pull it out. आप जितना उसको अपने आप को सामने लेके आते हैं, अपनी इंटेंशन को सामने लेके आते हैं, और इसके साथ साथ ये इंटरलिंक कर रहा है आपकी सेल्फ इंटेंशन और आपकी जो परसेप्शन डेवलप होती है आपकी पब्लिक के अंदर, और फिर आप उस परसेप्शन को बेस बनाकर जो अपनी पोजीशनिंग करती है और अपनी मार्केटिंग करती है, ठीक है, और अपनी स्पेस बनाते जाते हैं। बेसिकली यू आर द पर्सन टू क्रिएट योर ओन स्पेस, नो वन इन द वर्ल्ड। You are the person to judge yourself that how good and how bad you are, the strengths and the weaknesses that you have. You are the person to evaluate and assess about yourself. आप बजाय के इस चीज पर गौर करें कि मुझे कहां से किस अंदाज में कहां से फीडबैक मिल रहा है, आपकी अपनी जात
जब आप मैप करते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स को, जब आप ग्रुप करते हैं, तो आपको खुद अंदाजा होता है कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं और कहाँ आप अपलिफ्ट कर रहे हैं। और इससे होता क्या है, आपकी क्रेडिबिलिटी इंप्रूव करती है। यस, याद रखिएगा, जब तक आप इस पे मेहनत नहीं करते और अच्छे तरीके से अपने पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं जानते, तो यकीन जानिए बहुत सारी मामलात में हम पीछे रह जाते हैं। हमारा जो फेलियर है उसकी जो बुनियादी वजह ये है कि हमने अपने सारे मामलात में बड़ी मेहनत कर ली होती है, लेकिन हम अपने आप को जान ही नहीं पा रहे होते कि हमारे पास क्या कुछ, हमारे पास अल्लाह ने जो सलाहियतें दे रखी है। तो जितना अच्छे अंदाज में, इफेक्टिव अंदाज में, जितना आप सक्सेसफुल अंदाज में अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, अपनी मार्केटिंग करते हैं, अपने आप को खुद मंज़िल-ए-आम पे लेके आते हैं, उस कदर आपकी ज़ात में निखार भी पैदा होता है और आप कामयाबी की तरफ रवाना हो जाते हैं। याद रखिएगा, ऐसा नहीं होता कि लोग आपको बहुत ज्यादा खुश करते हैं। आपने पहले खुद मेहनत करनी होती है और फिर आपका दायरा-कार वसी होता है। ये तरीकाकार ऐसा होता है। ये नहीं है कि ये आपको लोग स्टार्ट में ही खुश कर देते हैं, नहीं, आपने पहले अपने आप को खुद कोशिश करना होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने दायरा-कार को वसी करते हुए कामयाबी समेटना शुरू कर देती है। और बेसिकली अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें, देखिए, इट्स अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ योर पैशन, योर स्ट्रेंथ एंड योर पर्पस। ये इंटीग्रेटेड है। The passion, the more the passion you have in yourself, and the passion that you basically get, it's a driving force that move towards what? Strengths. The strengths that you have in yourself, और उसके बाद आपका पैशन है और आपकी स्ट्रेंथ है और आपका पर्पस है, और ये बेसिकली इंटीग्रेटेड है। और इसके बिल्कुल पैरेलल अगर हम दूसरे सर्कल की बात करें तो ये आपका एटीट्यूड है। आप लाइफ को, आप जिंदगी को किस अंदाज में देखते हैं, ठीक है ना? आपका एटीट्यूड अगेन आपका ड्राइविंग फोर्स है टुवर्ड्स योर बिहेवियर, और आपका बिहेवियर ड्राइविंग फोर्स है आपके एक्शन की तरफ, और आपका एक्शन फिर भी इन्फोर्स होता है आपके एटीट्यूड की तरफ। याद रखिएगा, मैंने दो सर्कल्स की बात की है। मैंने कहा इट्स a combination of what? Passion. Normally, when we talk about the passion, normally during the training and teaching, the question that I'm asking from a student is what? कि passion important है कि patience important? For satisfaction, for success, passion और patience ये दोनों साथ साथ चलते हैं। आप पैशन को अपलिफ्ट करते हैं और साथ पेशेंस को रिटेन करते हैं, पेशेंस को। पैशन और पेशेंस के साथ साथ फिर आगे आपकी कोर वैल्यूज आ जाती हैं, जिनकी तफसीलात हम आगे डिस्कस करेंगे, और फिर आपका पर्पस जो बड़ा जरूरी है। और दूसरी बात जो मैंने आपसे की है, इसके बिल्कुल साथ पैरेलल वो क्या मैंने किया आपसे, कि आपका एटीट्यूड, क्या वाकईतन आप ये चाह रहे हैं कि आप जिंदगी में एक्सेल करना चाहते हैं, कि वाकईतन आपके अंदर ये ख्वाहिश है कि आप बहुत सारी कामयाबी समेटना चाहते हैं, अपने ऊपर मेहनत करना चाहते हैं, और आपका एटीट्यूड क्या आपको लीड फराहम करता है आपके बिहेवियर की तरफ, और का आपका बिहेवियर बेसिकली क्या है, वो आप टिल्ट करता है आपके एक्शन की तरफ, और दोबारा मैंने बताया ये रीइंफोर्स है आपके एटीट्यूड की तरफ। तो बेसिकली ये बड़ा जरूरी है कि ये जो कॉम्बिनेशन है इसको समझना। और याद रखिएगा, when we talk about any person, it can be the leader, you may talk about the Mahathir Mohamad, Tayyip Erdogan, Nelson Mandela, Bill Gates। अगर आप इस्लामी हिस्ट्री बात करें तो ऑफ कोर्स द वन एंड ओनली जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जनाब सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, मोहम्मद बिन कासिम, टिम सुल्तान, तारिक बिन ज़ियाद, महमूद गज़नवी, ये सारे लोग कौन थे? याद रखिएगा कि अगर किसी लीडर के पास नॉर्म्स हैं, एथिक्स हैं, वैल्यूज हैं, स्किल्स हैं, टैलेंट है, उसके पास पैशन भी है, उसके पास पेशेंस भी है, वो एंथुसियास्टिक भी है, वो डेडिकेटेड भी है, वो कमिटेड भी है, उसके अंदर लॉयल्टी भी है, वो सिंसियर भी है, वो आगे फॉरवर्ड मूव करना चाहता है, वर्सेटिलिटी भी है, कमिटमेंट भी है, हर चीज होने के बावजूद
अगर उसके पास करैक्टर नहीं है ना, तो वो फिर भी पीछे रह जाएगा। याद रखिएगा, जब आप सेल्फ ब्रांडिंग की बात करते हैं, ये करैक्टर वर्सेस पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी क्या है? पब्लिकली पॉपुलैरिटी का ताल्लुक है आपकी पब्लिक के साथ, कि पब्लिकली व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू, द गुड द बैड थिंग्स इन योरसेल्फ। लोग आपको जिस हद तक जान सकते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन होती है, आप जिस हद तक लोगों के साथ आपका लाइजन होता है और जितना वो आपको जानते हैं, ये तो पब्लिक है। आप जो कैरेक्टर की बात करते हैं, प्योरली आपका प्राइवेट है। What you think about yourself? Yes, ask from yourself. Yes, look inside you. Look inside you. Look and believe on your thoughts and beliefs. ये तो आपकी ट्रू पर्सनैलिटी, ये जो आपके अंदर है वो है। याद रखिए कि आपकी फेमिलियरिटी, आप कितने फेमस हैं, आप कितने पॉपुलैरिटी है आपकी, ये सब कुछ साथ साथ है। लेकिन अगर आप करैक्टर को बिल्ड नहीं करते, करैक्टर आपको मेन पिलर है जो आपको कामयाबी की तरफ धकेलता है। तो ये करैक्टर का आपकी जात होना बड़ा जरूरी है। और देखिए, एक है ये मेरी जात, एक है मेरी सीक्रेट सेल्फ, सेल्फ वर्सेस सीक्रेट सेल्फ। एक है जो बंद कमरे के अंदर सिर्फ मैं जानता हूं, मेरा रब जानता है, और एक वो है जो लोग मुझे जानते हैं। तो जब आप इन दोनों में हारने डेवलप कर लेते हैं, तो फिर आपका करैक्टर बिल्ड होता है। कुरान में कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। तो जो कहते हो ईमान वालों, उस पे अमल क्यों नहीं करते? ठीक है ना? यानी हमारा ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, हम जो कॉन्ट्रडिक्ट कर जाते हैं, हमारे एक्शन और हमारी डूइंग, ठीक है ना, हम दोनों में जो क्लैश रहता है, जब ये क्लैश ना रहे और ये चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाए, तो आपका कैरेक्टर बिल्ड हो जाता है। याद रखिए, जब हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, सेल्फ ब्रांडिंग की, तो आपकी सारी नॉर्म्स, सारी वैल्यूज और सारे टैलेंट और सारे विजन और मिशन के साथ साथ आपकी जो वन एंड ओनली जो बुनियादी चीज है, फंडामेंटल आपका टूल है, वो आपका करैक्टर। ठीक है? और इसके साथ जब हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं कि सारी चीजें कैरेक्टर और उसके साथ सारी चीजें के साथ इसके अलाइन हैं, तो जो हम बकायदा जब इसको ना झांकने की कोशिश करते हैं सेल्फ ब्रांडिंग की, तो उससे पहले ये एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी असेसमेंट टेम्परामेंट, कैरेक्टरिमेंट, temperament. For example, if you want to get some kind of work and make some kind of success as well, how good you are as far as enthusiasm is concerned, the passion is concerned, the optimism is concerned, your attitude is concerned, आपका टेम्परामेंट क्या है, और आप उसको बेहतर जानते हैं कि नॉर्मली बहुत सारे मामलात में ठीक है ना, हमारी सर्चिंग इतनी पर्सनैलिटी के अंदर इम्पल्स नेचर, लाइक दिस इम्पल्स नेचर, तो टेम्परामेंट का बेहतर होना बड़ा जरूरी है। और टेम्परामेंट के साथ आपका कैरेक्टर, ठीक है ना, क्या हम्बलनेस है आपके अंदर, ठीक है ना, क्या आप क्या हेल्पिंग हैंड है, टेम्परामेंट। सेल्फ ब्रांडिंग टूल को समझने से पहले इसको समझना बड़ा जरूरी है। जब तक इनकी हार्मनी डेवलप नहीं होगी टेम्परामेंट और कैरेक्टर की, तो याद रखिएगा हम कंफ्यूजन का शिकार रहेंगे। बस औकात टेम्परामेंट में आपके जीन्स भी आ जाते हैं, यस, आप ये जेनेटिकली ट्रांसफर भी होता है, बस औकात आपको डेवलप करना होता है, और आपका जो कैरेक्टर है, ठीक है ना, वो आपके अपने हाथ में होता है, जिसके भी तफसील से मैंने भी बात की है। तो आपने और टेम्परामेंट में भी हमने एटीट्यूड की बात की स्टार्ट के अंदर, तो आपका टेम्परामेंट और आपका कैरेक्टर ये बेसिकली एक ये है जो आपको आपस में मिलाता है। तो जितना इसमें हम आहंगी रहती है, हम अपने आप को अपलिफ्ट करते हैं और पुश करते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, ये सारी जो प्रिल्यूड मैंने आपसे की है, ये तमीदी गुफ्तगू सारी की है, 2-4 जो मैंने बातें की हैं, ये वो चीजें हैं जो हमें जानना जरूरी है। हम इसकी डिटेल डिस्कशन में अब जाएंगे कि बेसिकली वो कौन सी चीजें हैं जो वाकईतन हमें कामयाबी की तरफ जाने नहीं देती। देखिए, सबसे पहले जो है, बिलीव इन योरसेल्फ।
How many of you honestly, realistically, तो जो वाकई ये समझते हैं कि मैं अपने को जानता हूँ, who am I, who you are basically, क्या हमने अपने को डिस्कवर किया है, क्या हम अपने आप को जानते हैं, हमारा जो पोटेंशियल है कभी हम इसको अनलॉक करने की कोशिश की है? मुझे एक बात बताइए, लाइफ के अंदर कभी ऐसे हो कि आपने अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन और क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन के अलावा कभी आपने मैपिंग की हो, कभी आपने अपने ऊपर गौर किया हो और आपने ड्रॉ किया हो, ये मेरा स्ट्रेंथ एरिया है, ये मेरा वीकर एरिया है, मैंने अपने स्ट्रेंथ एरिया को अपलिफ्ट करना है, वीकर एरिया को मैंने मिनिमाइज करना है, मेरा पोटेंशियल इतना है और इसे मैंने कहाँ एक्सेलरेट करना है, मेरे करियर को की ग्रोथ को एक्सेलरेशन के लिए मैं अपने पोटेंशियल को कहाँ अपलिफ्ट लेके जा सकता हूँ, मेरी जो प्रोफेशनल एक्सीलेंस है वो किस हद तक मैक्सिमाइज हो सकती है। ये है बिलीव इन योरसेल्फ। यस, क्या मैं हूं क्या? Normally, when you ask the same question to the student and some job professional executives and businessmen as well, तो हम उसको नॉर्मली रिलेट करते हैं किस अपनी एज के साथ, अपनी पोजीशन के साथ, अपने डेजिग्नेशन के साथ। नहीं नहीं नहीं, ये बेसिकली देखिए, ये वो सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आपके अपने हैं, आपका जो पोटेंशियल है, इनफैक्ट जिसका आप उसको दरियाफ्त कर चुके हैं, क्या आपको पता कि who you are basically, ठीक है ना? आप ये तो जानिए, अच्छा किस कदर हमें अपनी जात पे यकीन, जो हम बिलीव इन योरसेल्फ की बात करते हैं, तो ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव अप्रोच क्या है? हम जब अपने सेल्फ, व्हेन वी डिनाई आवर सेल्फ एक्सप्रेशन, हमारे पास सेल्फ एक्सप्रेशन भी है कि नहीं है? जब हम डिनाइल में जाते हैं तो हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, हमें टेंशन होती है। आपकी जात का जो अपने एक्सप्रेशन, ठीक है ना, जो आपकी अपनी वैल्यूज हैं, कोर वैल्यूज, ठीक है ना, जब आप उसको डिनाई करते हैं तो याद रखिए आपका डाउनफॉल स्टार्ट होता है। बिलीव इन योरसेल्फ, सक्सेस एंड सेटिस्फैक्शन, देखिए ये ऐसी ही है जिससे मैंने अपनी बात की कैरेक्टर की और पॉपुलैरिटी की। नॉर्मली हम सक्सेस को हर चीज समझते हैं। देखिए सक्सेस का ताल्लुक तो किस चीज से है? आपके आउटर लुक से है। What people think about you and how basically they place you, ठीक है ना, कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। और सेटिस्फैक्शन बेसिकली आपका इनर है। सेटिस्फैक्शन इज मोर वर्थ देन सक्सेस। यस, अगर आप कंपैरिजन करें इन दोनों को आपस में, तो सक्सेस तो बहुत छोटा है, सेटिस्फैक्शन का एलिमेंट बहुत बड़ा है। आप अगर बहुत सक्सेसफुल भी हैं, एक अच्छे जॉब प्रोफेशनल हैं, एक अच्छे अकाउंटेंट हैं, आप एक अच्छे एग्जीक्यूटिव हैं, आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, and look into yourself, if you are still confused as far as the satisfaction is concerned, if you are still unable to identify your inner, जब आप अपने सेटिस्फैक्शन को आप अचीव ही नहीं कर सकते तो वो सक्सेस आपकी जीरो हो जाएगा। तो याद रखिए सेटिस्फैक्शन बहुत ऊपर होती है सक्सेस के साथ। यस, अगर दोनों साथ साथ पैरेलल चलना शुरू हो जाए तो फिर तो क्या ही बात है, बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो हम नॉर्मली सक्सेस को रेशो बनाते हैं, कामयाबी की जीना बनाते हैं। याद रखिए सक्सेस के एलिमेंट को हम इग्नोर नहीं कर रहे, लेकिन सेटिस्फैक्शन का एलिमेंट उससे बहुत बड़ा, बहुत ऊपर। याद रखिएगा नॉर्मली जब हम बिलीव इन योरसेल्फ की बात करते हैं, हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स, डोंट गो फॉर बायोलॉजिकल फैक्टर, ज्योग्राफिकल फैक्टर, जो एजुकेशनल फैक्टर, नो नीड फॉर दैट, ठीक है ना। जब आप फोकस करते हैं ना अपने आप को, याद रखिए देन यू हैव नो टाइम फॉर द हेट, फॉर द वरीज, यू हैव नो टाइम फॉर द फ्रस्ट्रेशन। फिर आप फोकस करते हैं, जब आप अपने अंदर देखते हैं, शिफ्टिंग फोकस इनसाइड, यस, कि व्हाट द थिंग्स दैट आई हैव, दैट अल्लाह ब्लेस मी, और उसको मैंने कैसे चैनलाइज करना है। यस, ये एलिमेंट शिफ्टिंग फोकस इनसाइड। नॉर्मली हमारा बिल्कुल ऑपोजिट होता है, ठीक है ना। तो बिलीव इन योरसेल्फ ये है, द स्किल्स दैट यू हैव, यू आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। यस, Allah, thank you very much that you bless me these kind of skills. Yes, कि मुझे ये skills मिली हुई है। Finding inner, देखिए सब आपस में इंटरलिंक्ड है। अब ये गौर कीजिए, सक्सेस, सेटिस्फैक्शन, शिफ्टिंग फोकस इनसाइड, फाइंडिंग इनर,
or yoga and meditation. This is a very helping tool for the self belief. Yes, meditation. आप जब मेडिटेट करते हैं अपने आप को और अपने ऊपर मेहनत करते हैं और योगा करते हैं, ठीक है ना। योगा बेसिकली क्या है? ये वो एक्सरसाइजेस हैं जो बेसिकली आपको अपनी जात से मिलाते हैं। यस, तो याद रखिए पहली जो कामयाबी की जो सीढ़ी है वो है बिलीव इन योरसेल्फ। जब तक आप इस शैकल को ब्रेक नहीं करेंगे आप कामयाब नहीं होंगे। इनकी बात याद रखिए, यू हैव टू ब्रेक द शैकल, देन आप फॉरवर्ड करेंगे, अपने आप को मूव करेंगे। और जब हम आगे की बात करते हैं तो देखिए, एन ओरिजिनल इज ऑलवेज वर्थ देन अ कॉपी। मैं ये नहीं कहता कि हमें फॉलोवर नहीं बनना चाहिए, अब टू सम एक्सटेंट कहीं ना कहीं आपको फॉलोवर बनना पड़ता है, ठीक है ना। यस, आई डेफिनेटली गो फॉर द फाइंडिंग मेंटोर, यस बहुत जरूरी है, बट क्या हमने अपनी ओरिजिनलिटी जो है उस पर मेहनत की है? We would rather die as individual than live without an identity. तो branding is what? Identity. Yes. आपकी आइडेंटिटी, अगर आपने अपनी आइडेंटिटी पे मेहनत नहीं की और इसको ट्रांसफॉर्म नहीं किया, अपने ड्रीम्स को फिजिकल रियलिटी में कन्वर्ट नहीं किया, क्रिएटिविटी पे काम नहीं किया। यस, वन ऑफ द हैंडी टूल्स, यस क्रिएटिविटी, कि मैं किस तरीके से अपने आप को एक्सपोज करके एक्सप्लोर करके आगे जा सके। तो याद रखिए कि आइडेंटिटी के बगैर जिंदगी में कामयाबी का कोई तस्वर नहीं है। आप सक्सेस के किसी भी लेवल पे चले जाएं, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन आपकी आइडेंटिटी से मिलती है, आपकी ब्रांडिंग से मिलती है, ठीक है। और जो मुसलसल मेहनत से और कैरेक्टर बिल्ड करने से और आप अपनी स्ट्रेंथ्स को एक्सपोज करने से मिलती है। और देखिए, आपका पहले पॉइंट है बिलीव इन योरसेल्फ। अब इसको लिंक करते हैं सेकंड फेज के साथ, डिस्कवर योरसेल्फ। जब आपने पहले आपने को बिलीव कर लिया, देन द सेकंड फेज इज डिस्कवर योरसेल्फ। हाउ मेनी ऑफ यू that they are really think about that they honestly discover themselves? क्या उनको वाकई पता है? रैपिड लर्निंग मोड, यस। आपकी वो सारी कामयाबियां, वो सारी चीजें जो आपको एक्सीलरेट कर रही थी अपने करियर की ग्रोथ की तरफ, ठीक है ना, हमने उस पर कितनी मेहनत की, हमने अपने आप को कितना एडजस्ट किया अपने आप को उस एनवायरनमेंट के साथ जहां हम लर्निंग को भी एक्सेल करते हैं, रीडिंग को भी एक्सेल करते हैं, एक्सीलरेट करते हैं और अपने आप को लर्निंग मोड पे लेके जाते हैं। तो रैपिड लर्निंग मोड बेसिकली क्या है कि आपका पैथ क्या है, ठीक है ना। आप कामयाबी को किस तनाजुर में देखते हैं और उसके लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप उसके लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक तो ये रैपिड लर्निंग मोड और एक है ग्लिम्पसेस ऑफ एक्सीलेंस। याद रखिए, रैपिड लर्निंग मोड तो आपका भी मौजूदा है, करंट है, और ग्लिम्पसेस ऑफ एक्सीलेंस क्या है कि पास्ट में जो कामयाबी आपने समेटी, जिस महाज पे अपने कामयाबी समेटी, आपके पास जो सर्टिफिकेशन है, जो आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, जो आपने वैल्यू ऐड की इंडस्ट्री के अंदर, जहां जहां आपने मेहनत की, अपना नाम बनवाया। अब इन दोनों के दरमियान एक नई चीज भी है, रैपिड लर्निंग मोड, ग्लिम्पसेस ऑफ द एक्सीलेंस के दरमियान फ्लो। हाउ ब्यूटीफुली यू एक्सीलरेट योरसेल्फ, ठीक है ना। आप इसको किस तरह आपस में लिंक करते हैं, अपने रैपिड लर्निंग मोड को अपने ग्लिम्पसेस ऑफ एक्सीलेंस के साथ। फ्लो बेसिकली आपका वो ब्रिज का रोल प्ले कर रहा होता है। जब आप फ्लो को मेंटेन रखते हैं, सस्टेन और रिटेन करते हैं, तो फिर क्या होता है, आप अपने मौजूदा को, अपनी पास्ट कामयाबियों पे भी खुश होते हैं। हाउ डिड यू डू ऑल दीज थिंग्स? यस, ग्लिम्पसेस ऑफ एक्सीलेंस। और रैपिड लर्निंग मोड जो आपकी मौजूदा होती हैं, जिससे आपने अपने आप को इन्वॉल्व किया होता है, और मैंने बताया कि दरमियान आपका फ्लो है, किस तरीके से आप इन दोनों को एडजस्ट करते हैं, आपकी अडॉप्टेबिलिटी और एडजस्टेबिलिटी, और इसी के साथ साथ आपका सेटिस्फेक्शन लेवल। यस, जब आप लर्निंग मोड में जाते हैं, अपने आप को डिस्कवर करते हैं, फ्लो को एक्सेलरेट करते हैं, आप अपनी कामयाबियों पे खुश होते हैं, तो फिर आप सेटिस्फेक्शन के लेवल पे जाते हैं। याद रखिए, अब गौर कीजिए, मुसलसल मैं बात कर रहा हूं सेटिस्फेक्शन की। हम सक्सेस को इग्नोर नहीं कर रहे, लेकिन सेटिस्फेक्शन के एलिमेंट सक्सेस से बहुत ज्यादा, याद रखिएगा। हमने पहला एलिमेंट पे बात की आपके सामने, बिलीव इन योरसेल्फ, और हमने
दूसरे एलिमेंट पे बात की, डिस्कवर योरसेल्फ। अब जब हम अपने आप को डिस्कवर कर लेते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट फेज आती है वो क्या? रीइन्वेंट योरसेल्फ, बड़ा जरूरी है। रीविजिट योर स्केड्यूल। मुझे बताइए, क्या हम लाइफ के जिस पेस के साथ चल रहे होते हैं, कभी हमने रिविजिट किया अपने स्केड्यूल को? आफ्टर एवरी 10 to 12 to 15 to 18 months हमारे कहाँ फॉल्स थे, कहाँ फ्लॉस थे, कहाँ हमें अपने को मेहनत से बेहतर करना चाहिए था, कहाँ हम गलत करते रहे। हमें से कितने अफराद ऐसे हैं जो रिविजिट करते हैं, रिस्केड्यूल करते हैं, रीइन्वेंट करते हैं अपने आप को। ये सारे आपस में इंटीग्रेटेड है। बिलीव इन योरसेल्फ, डिस्कवर योरसेल्फ, रीइन्वेंट योरसेल्फ। और जब रीइन्वेंट की बात करते हैं टिपिकली तो कंफर्ट जोन। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। हम नॉर्मली अपनी ट्रेनिंग पे एक मिसाल देते हैं फ्रॉग सिंड्रोम की। आप अगर आप बायो के स्टूडेंट रहे हैं तो आपको ये अंदाजा होगा कि फ्रॉग, मेंढक, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, एक कैपेसिटी होती है। अगर फर्ज कीजिए आप किसी केतली के अंदर पानी में उसको रख दें और नीचे आग लगा दें, तो ये इसके अंदर एडजस्टेबिलिटी होती है। ये एक खास लेवल तक आपको एडजस्ट करता है। आपने थोड़ी आग तेज की, ये थोड़ा सा उछले कूदेगा, फिर एडजस्ट करेगा। आपने थोड़ी और आग तेज की, ये थोड़ा सा और उछले कूदेगा, फिर एडजस्ट करेगा। थोड़ी सी आग आपने और तेज की, ये उछले कूदेगा और मर जाए। क्या होगा? याद रखिए, खास सर्टन लेवल तक तो उसने एडजस्ट किया। कंफर्ट जोन की बात कर रहे हैं हम, सर्टन लेवल तक तो एडजस्ट किया, लेकिन जहां उसको जंप इन होना चाहिए था वो जंप इन नहीं हुआ। उसका नुकसान क्या हुआ? उसकी मौत हुआ। क्या? दूसरी मिसाल सुनिए। एक होता है जंगल का शेर, एक होता है सर्कस का शेर। याद रखिए, जंगल के शेर को कभी खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता। जंगल के शेर को कभी धूप मिलती है, कभी छांव मिलती है। जंगल के शेर को शिकारी से भी मुकाबला करना पड़ता है, बचना पड़ता है। और उसके मुकाबले में जो सर्कस का शेर होता है, उसे पता होता है कि मुझे 2 या 3 वक्त तक खाना मिलना भी मर्डर है। उसे ये मालूम होता है कि मुझे धूप का मसला नहीं है, बारिश का मसला नहीं है, शिकारी का मसला नहीं है, आजादाना है, मैं अच्छी से जिंदगी गुजारूं। लेकिन दोनों में बुनियादी फर्क क्या है? सर्कस के शेर आजाद है, आजाद है, यहां से भी आजाद है, यहां से भी आजाद है, दिल से भी आजाद है, यहां से भी आजाद है, पाबंदियां नहीं है। सर्कस के शेर को सारे इंसेंटिव्स होने के बावजूद भी आजाद नहीं है। अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि आप क्या बनना चाहेंगे, सर्कस का शेर बनना चाहेंगे कि जंगल का, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप में से अक्सरियत ये कहेगी कि हम जंगल का शेर बना। हमारी अपनी विल तो रहेगी ना, हम अपनी आजादाना जिंदगी तो गुजार सकेंगे। तो मुझे बात बताइए, हम जंगल का शेर तो बनना चाहते हैं, हम कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते। हम अपने लाइफ में सक्सेस तो लेना चाहते हैं, कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते। ये है रीइन्वेंट योरसेल्फ। याद रखिए, आप जब कंफर्ट जोन को के शैकल को ब्रेक करती हैं और जंप आउट होते हैं, तो आपके कंफर्ट जोन के ऊपर जो दूसरा सर्कल जो इंटीग्रेटेड होता है वो होता है ग्रोथ जोन। और कीजिएगा, कंफर्ट जोन जो कि बाइसेक्ट कर है, इंटरलिंक है ग्रोथ जोन के साथ, और ग्रोथ जोन का सर्कल तीसरे सर्कल के साथ लिंक कर रहा होता है जो आपका पैनिक जोन होता है। फिर देखिए, कंफर्ट जोन, ग्रोथ जोन और पैनिक जोन। व्यूअर्स, नॉर्मली तो हम कंफर्ट जोन को छोड़ते ही नहीं और अपॉर्चुनिटी जोन में जाते ही नहीं, हम वही बैठे होते हैं और उसमें बड़े मुतमईन होते हैं। और अगर हम उसको छोड़ें तो बजाय कि हम जंप करें और ग्रोथ जोन में जाएं, हम और एक्साइटमेंट में अपने आप को मुसीबत में डाल लेते हैं। हम जंप करके ग्रोथ में नहीं जाते, बल्कि हम पैनिक जोन में चले जाते हैं। और याद रखिए, पैनिक में जाके फिर आप टेंशन का शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी कि मैं जो करना चाह रहा था मुझसे हो नहीं रहा। देखिए, जिससे हम नैना रवि कहते हैं, नैना रवि, आपका मजहब कहता है जिससे नैना रवि इख्तियार की वो कभी मुफलिस हुआ। माना मन तासद, जिससे नैना रवि इख्तियार की वो कभी मुफलिस ना हुआ।
अब यहां भी देखिए, कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाह रहे, अगर छोड़ते हैं तो इतनी बड़ी जंप लगाते हैं कि पैनिक जोन में चले जाते हैं। हालांकि हमारी कामयाबी इन दोनों के दरमियान ग्रोथ जोन में है। और ग्रोथ जोन का भी सुन लीजिए, हम जब ग्रोथ जोन की बात करते हैं तो ग्रोथ को हम पता किसके साथ इंटरलिंक करते हैं? मॉनेटरी सेंस के। क्या आपकी ग्रोथ सिर्फ पैसा ही है? क्या आपकी ग्रोथ जोन आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं है, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग नहीं है? क्या आपकी ग्रोथ जोन आपके पोटेंशियल को अनलॉक करना नहीं है? क्या आपकी ग्रोथ जोन आपकी लर्निंग और रीडिंग नहीं है? क्या आपकी ग्रोथ जोन आपकी क्रिएटिविटी नहीं है? क्या आपकी ग्रोथ जोन आपकी रैपिड लर्निंग नहीं है? क्या आपकी ग्रोथ जोन आपके स्ट्रेंथ्स को जानना नहीं है? क्या आपकी ग्रोथ जोन अपनी वीकनेस को कम करना नहीं है? अगर गुड एक्सपीरियंस, नॉर्मली जब हम डिफरेंट इंडस्ट्री में जा रहे होते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि हाउ मेनी ऑफ यू दैट दे नो अबाउट द एसओपीज एंड जेडीज दैट दे हैव, honestly speaking, much they are unable to express themselves. The SOPs and JDs really they have. और अगर उन्हें मालूम होता भी है कि उनकी जेडीज और एसओपीज ये हैं, स्किल्स रिक्वायर्ड है, इसको जस्टिफाई करने के लिए आप यकीन जानिए हमारे पास वो भी नहीं होता। अब गौर कीजिए मेरी बात, हम जब तक अपने कंफर्ट को ब्रेक नहीं करते, हम अपॉर्चुनिटी जोन में नहीं जाते, हम एक्सेल नहीं करते, हम अपने आप को एक्सपोज नहीं करते, एक्सप्लोर नहीं करते, जरूरी है। हमने बात की डिस्कवर योरसेल्फ। जी अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अभी आ रहे हैं? वीडियो ऑफ कर दो। ओके, मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके, ओके। हम बात कर रहे थे कि जब आप बिलीव इन योरसेल्फ, सेकंड फेज में मैंने आपको क्या बताया? बिलीव के बाद डिस्कवर योरसेल्फ, फिर मैंने क्या बताया आपको? री इन्वेंट और रिविजिट योरसेल्फ, और फिर मैंने क्या बताया आपको? बिल्ड योरसेल्फ, बिल्ड योरसेल्फ। ये बिल्ड योरसेल्फ क्या है? Your mapping tools, the mapping your strengths area. Yes, आपका strengths area। अब मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या वाकई हमें पता हमारा स्ट्रेंथ एरिया क्या है? क्या हमने कभी अपने इस पे मेहनत की? क्या हमने कभी जानने की कोशिश की हमारे पास स्ट्रेंथ्स क्या है? हम हमेशा इस बात पे परेशान रहते हैं कि हमारी कमजोरी क्या, कमियां क्या है, और उसमें हम रोते हैं, सिसकते हैं, तड़पते हैं, परेशान रहते हैं। बट जो स्ट्रेंथ्स जो अल्लाह ने हमें दे रखी है, क्या डेडिकेटेड नहीं, कमिटेड नहीं, सिंसियर नहीं, लॉयल नहीं, एंथुसियास्टिक नहीं है, वर्सटाइल नहीं है? क्या आप हार्ड वर्किंग नहीं है, स्मार्ट वर्किंग नहीं है? क्या आपके अंदर पैशन नहीं है, पेशेंस नहीं है? और स्ट्रेंथ्स आपके अंदर है। बिल्ड योरसेल्फ क्या है? अपने स्ट्रेंथ को मैप करना, अपने अंदर क्रिएटिविटी लेके आना, अपने को लर्निंग में लेके आना, और आप अपने नेटवर्किंग करते हैं वैल्यू एडिंग के साथ। याद रखिए, वो लोग जो आपकी लाइफ में वैल्यू एड करते हैं, आप खुद तो करते हैं, आपके दाएं बाएं ऐसे अफराद, इन्वायरमेंट, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपका ऑफिस,
जब आप अपनी नेटवर्किंग करते हैं वैल्यू एडर के साथ, जो आपकी वैल्यू को ऐड करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं, तो क्या होता है, आप अपने को बिल्ड करते हैं। और याद रखिए, जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स को मैप करते हैं, क्रिएटिविटी लेके आते हैं, नेटवर्किंग करते हैं वैल्यू एडर के साथ, और अपने आप को दोबारा लर्निंग मोड पे लेके जाते हैं, तो बेसिकली क्रिएट योर ओन स्पेस। आप अपनी स्पेस बना रहे हो। इट मीन्स you are the person to create your own space, no one in the world. आपको अपनी स्पेस खुद बनानी होती है। कब तक हम लोगों से इतराज करते रहेंगे, फलां ने मुझे मौका नहीं दिया, फलां ने मुझे मौका नहीं दिया, मैं अगर ये करता तो हाँ मुझे ये करना चाहिए था, मुझे कंफर्ट जोन को छोड़ना चाहिए था। I have a lot of examples for that. मेरे पास इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, मेरे पास मेरी जाती मिसाल इसकी है। जब तक आप ये वो करते रहते हैं ना, फलां को देख लिया, फलां को देख लिया। एक वक्त ऐसा था, बहुत दूर की बात नहीं है, कुछ 2.5-3 साल पुरानी बात होगी, मेरी ख्वाहिश थी कि जो लीडिंग नाम है कि मेरा उनसे रब्ता हो, मैं उनसे बात करूं, गपशप करूं, मेरा उनसे मिलना जुलना हो। जब मैंने महसूस किया कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमें से हर बंदे ने अपना कन्फाइन किया हुआ है, तो मेरे पास 2 रास्ते थे। द फर्स्ट इज, या तो मैं क्विट कर जाऊं और या मैं अपने आप को एक्सेलरेट करूं। मैंने दूसरा रास्ता अख्तियार किया कि मैंने कहा मैंने मेहनत करनी है, मैंने बिल्ड करना अपने आप को, मैंने अपने को परेशान नहीं करना। मैंने फिर क्या किया, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मैंने वैल्यू एडर के साथ नेटवर्किंग की, जहां जहां लोग मुझे अप्रिशिएट करने वाले थे, मोटिवेट करने। एक तो सेल्फ मोटिवेशन तो मेरी थी, जहां जहां लोग मुझे मोटिवेट करने वाले थे उनको सबको मैंने अपने साथ मिलाया। मैंने अपने स्ट्रेंथ एरिया को मैप किया, मैंने अपने आप को डिस्कवर किया, अपने आप को मैंने खुद बिल्ड किया अपने आप को। और फिर यकीन जानिए कि मुझे वहां से कामयाबी मिली, मैं आपको बता नहीं सकता। इसलिए याद रखिए, ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड है। बिलीव इन योरसेल्फ, डिस्कवर योरसेल्फ, रीइन्वेंट योरसेल्फ, बिल्ड योरसेल्फ। हम आगे जाते हैं तो आगे स्मार्ट इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ, यानी क्या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ऑन योरसेल्फ से मुराद क्या? ये है इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। आप इसको 2 नाम दे सकते हैं, इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ अगर हम उसी सीक्वेंस में चल रहे हैं, या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, इमोशनली, स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली एंड फिजिकली। अब मुझे बताइए, स्पिरिचुअली क्या हमें अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए? अयहसबुल इंसान अन युतरक सुदा, क्या ये इंसान समझता है कि इसे यूं ही छोड़ दिया जाएगा? या अय्युल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, इंसान तुझे किस चीज ने अपने रब्बे करीम के मामले में धोखे में डाल रखा है? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हया, हमने जिंदगी और मौत की तख्लीक की, लियब्लुवकुम, ताकि हम जान सकें, अय्युकुम अहसनु अमला, तुम इससे अच्छे अमाल कौन करता है। वमन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल लज़ीना अनअम अल्लाह, जिन्होंने अल्लाह और रसूल पे की इताअत की, आगे अल्लाह कहता है उनका शुमार किन लोगों के साथ है? अन्नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। हमने स्पिरिचुअली कितनी मेहनत की अपने ऊपर, क्या इन्वेस्टमेंट किया अपने ऊपर? कुरान कहता है, आप पहले से कहते हैं कि नफ्स अम्मारा, जो आप बुराई का मुहर्रिक है, जब आप इसे जान छुड़वाते हैं, कोशिश करते हैं, स्पिरिचुअली इन्वेस्ट करते हैं अपने ऊपर, मेहनत करते हैं, आप सेकंड फेज में जाते हैं, जिसे नफ्स लव्वामा कुरान कहता है। हमने इसको फजूर व तकवा, नेकी और बदी के दरमियान रखा। अब यहाँ तज़ब्ज़ुब है, या तो आप दोबारा मार की तरफ चले जाते हैं या ऊपर चले जाते हैं। अगर आप स्पिरिचुअली इन्वेस्ट करते रहते हैं अपने ऊपर, तो आप तीसरे फेज में चले जाते हैं, जिसे कुरान नफ्स मुतमइन्ना कहता है। या अय्युहन नफ्स, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आप इस पे चले जाते हैं अपने नफ्स को मुतमइन करके। तो जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑन योरसेल्फ, तो याद रखिए स्पिरिचुअली बड़ी जरूरत है अपना ताल्लुक अपने रब्बे करीम से जोड़ना, जो बड़ा जरूरी है कि ताल्लुक को जोड़ना चाहिए रब्बे करीम के साथ।
और उसके बाद फिजिकली कितना मौका मिलता है हमें फिजिकली को मेहनत करने का, एक्सरसाइज करने का, फंडिंग की इन्वेस्टमेंट। आपकी सेहत को भी कुछ होगा ना, आपकी सेहत होगी तो मूव करेंगे ना लाइफ के अंदर, तो फिजिकल इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। हम हमारे पास टाइम कम है। इमोशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, कि किसके साथ आप चलते हैं, कितने हम्बल हैं, कर्टियस हैं, चीजों को इग्नोर करती हैं, अपने इमोशन अपने एटीट्यूड को कंट्रोल में रखते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग इमोशनल के अंदर ही आएगा। सस्टेनेबिलिटी, रिटेनेबिलिटी, रिटेंशन कितनी है, एडजस्टेबिलिटी, अडॉप्टेबिलिटी, और इंटेलेक्चुअली के ऊपर तो यकीन जानिए हमारा जनाजा निकला होगा। मैं कुछ सही बता रहा हूं। हम से कितने लोग हैं जो वाकई जिन्होंने अपने आप ताना बाना लाइब्रेरी के साथ जोड़ा होगा, लर्निंग के साथ जोड़ा होगा, ठीक है ना, जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। यस, और व्यूअर्स, मैं आपसे मुखातिब हूं, आप में से अक्सरियत उन लोगों की है जिनका ताल्लुक है पढ़ने पढ़ाने से, मुस्तकिल पढ़ने पढ़ाने से। तो इंटेलेक्चुअली हमारी मेहनत कितनी है इसके ऊपर, ये हमें देखना होगा। तो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट जब भी बात करेंगे तो ये स्पिरिचुअली भी होएगी, ये फिजिकली भी होएगी, ये इमोशनली भी होएगी, ये इंटेलेक्चुअली भी होएगी। हम थोड़ा चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। Go of yourself. Let go of yourself. Damnation. देखिए सक्सेस दो तरह की है, एक है शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म होना चाहिए, लेकिन बस we are able to go beyond it. हम लॉन्ग टर्म सक्सेस पे जाती नहीं है, हमारी शॉर्ट टर्म विक्ट्री ही हम उस पे ही अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं। हालांकि कामयाबी आपकी लॉन्ग टर्म में है, ठीक है ना। याद रखिएगा सक्सेस की जब करती है, शॉर्ट टर्म भी, लॉन्ग टर्म भी। शॉर्ट टर्म सक्सेस को पहली बात याद रखिएगा, हम सक्सेस को पहली बात सेलिब्रेट, यस, हम सेलिब्रेट करते नहीं सक्सेस। बड़ा जरूरी है आपकी कामयाबी को सेलिब्रेट करना, लेकिन आपने आपको सिर्फ कर लेना, करना ही ना, तो फिर क्या टाइम वैल्यूएशन के अंदर प्लानिंग, यस, जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है जी, आई एम सॉरी जी। क्या मैं जो कुछ डिस्कस सब कुछ आवाज जा रही है कि मैं अकेले बोलते जा रहा हूं? हेलो, जी जी, हेलो आवाज, हेलो, जी जी, आ रही है आवाज? ओके 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 ओके, वैसे बाकी मेरी आवाज सारी जा रही है ना? ओके, जी, हम बात कर रहे थे कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म।
और जब इसके बाद हम चाहते हैं थोड़ा सा, तो आप देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है, बी योरसेल्फ। अब तरतीब आप देखते जाइएगा, कोई नोट्स जो बना रहे होंगे हम सब जब पहले हमने स्टार्ट जब से किया था कि हमने सब ब्रांडिंग की डेफिनेशन और सिग्निफिकेंस की बात की थी, और उसके बाद हमने क्या बात किया, बिलीव इन योरसेल्फ, और फिर हमने डिस्कवर योरसेल्फ, रीइन्वेंट योरसेल्फ के बाद अब हम परफॉर्मेंस एनहांसमेंट टूल और पोटेंशियल ग्रोथ मैनेजमेंट, हम इस स्लाइड को नेक्स्ट स्लाइड के साथ जोड़ते हैं ताकि हम इन दोनों को मिला के बात कर लें। सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन, और पिछली स्लाइड मैंने बात की बी योरसेल्फ। याद रखिए जब आप बी योरसेल्फ की बात करते हैं, एक है आपकी स्ट्रेंथ्स, जिसकी मैंने बड़ी तफसील से डिस्कशन की, आपको बताया कि स्ट्रेंथ्स एरिया क्या आपका, याद रखिए। एक है आपकी पोटेंशियल स्ट्रेंथ, जब आपके मेंटोर आपके ट्रेनर या आपके टीचर आपको ये तो बता देते हैं कि आपका स्ट्रेंथ एरिया ये है, लेकिन फॉर द नेक्स्ट स्टेज, क्योंकि नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए आपकी नेक्स्ट स्टेज क्या है। देखिए एक स्ट्रेंथ एरिया आपका वो है जो तो आपके पास है, लेकिन इसमें वैल्यू ऐड क्या करनी है, आपने पोटेंशियल स्ट्रेंथ को डिफाइन कीजिए। ये वो चीज है जिसपे हमने इग्नोर किया अपने आप को, कि अगर मैं पॉसिबली मेहनत करता तो मैं और चीजों को समेट सकता था, मैं और कोशिश कर सकता था, मैं और मेहनत करके डिफरेंट चीजें ले सकता था। तो ये है प्रेशर बिल्डिंग मेथड, खुद अपने आप को डिस्कवर करना है, अपनी पोटेंशियल स्ट्रेंथ्स को। अच्छा, आप फॉल्स हैबिट्स, बैड हैबिट्स किस हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं उसको, ये भी आपका सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन है। किस हद तक हम फॉल्स को, अपनी बैड हैबिट्स को मिनिमाइज करेंगे ताकि आपकी जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है वो सामने आए, आपकी ब्रांडिंग सामने आए, आप उसको एक्सेलरेट करें। आपके वैल्यूज क्या है, आपके मिशन क्या है, आप उसको डिफाइन करना पड़ेगा आपको। यस, आपके कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या है। याद रखिए बी योरसेल्फ वो सारी चीजें हैं जो स्टार्ट होती है आपकी पोटेंशियल स्ट्रेंथ से लेके आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट और कोर वैल्यूज तक, ये है बी योरसेल्फ। तो व्यूअर्स, जब भी आप सेल्फ ब्रांडिंग की बात करते हैं तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि सेल्फ ब्रांडिंग आपके अपने हाथ में है। आप जितना अपने को डिसिप्लिन बना लेंगे, जितना आप अपने आप को एंगेज रखेंगे हेल्थी एक्टिविटीज के साथ, लर्निंग मोड के साथ, जितना अपने आप को एंगेज रखेंगे स्पिरिचुअली, फिजिकली, अपनी इंटेलिजेंस के साथ, जितना अपने को एंगेज रखेंगे हेल्थी एक्टिविटीज के साथ, तो आप सीखेंगे। और हम में से कितने अफराद ऐसे हैं जो वाकईतन ये चाहते हैं, या जो वाकईतन जिन्होंने अपने मेंटोर को तलाश किया होगा। क्या आप जरूरी नहीं समझते कि आप अपने आप को लाइब्रेरी की जिन्नती बनाएं और अपने मेंटोरशिप के पे भी जाएं। ये सारे जो डोमेन्स मैंने बताए हैं ये हमारे अपने हाथ। आप जितने भी कामयाब अफराद हैं उनको देख लीजिए, अगर आपकी आइडेंटिटी कम हो जाएगी, अगर आप अपनी आइडेंटिटी में मेहनत नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत सी चीजों से महरूम हो जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि वो सारी चीजें हैं जो हमारे ब्रांडिंग को, हमारे सेल्फ ब्रांडिंग को एक्सेल करने में, स्टिमुलेट करने में और उसको एक्सेलरेट करने में हमारी मददगार और मुआविन होती है। और इसके साथ जो आखिरी बात है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, खैरुन नास मन यनफउन नास, कि तुम से बेहतरीन है वो जो दूसरों को मुफीद है। तो अल्लाह से ये दुआ किया कि अल्लाह में मुफीद बनाए, खैर का काम करने वाले और खैर का काम करने वालों का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। ये भी आपकी ब्रांडिंग का, जो मैंने बात की थी टेम्परामेंट और कैरेक्टर इन्वेंटरी की, आपके कैरेक्टर का ये हिस्सा है कि आप कितने हेल्पफुल हैं, आप कितने लोगों को आसानियां फराहम करते हैं। ये सारी चीजें आपकी ब्रांडिंग का हिस्सा है। मैं उम्मीद करता हूँ ये जितनी हमने डिस्कशन की है इसमें बहुत सारी चीजें आपके लिए कामयाबी की जिन्नत बनेगी और आप इस पर मेहनत करते हो अपने आप को एक्सेलरेट करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। कोई क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा आपसे।
So thank you very much, Mr. Sajid. This was indeed a wonderful session, and I believe it would have made a valuable addition to the knowledge of our participants as well. मेरे पास क्वेश्चन तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम सबको आंसर तो नहीं कर सकेंगे. हम कोशिश करेंगे कि बाद में मेल के थ्रू या कॉल के थ्रू उनको आंसर कर दिया जाए. अभी एक दो टॉप क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने चूज किए हैं. आई वुड लाइक यू टू प्लीज आंसर द क्वेश्चंस. The first question somebody asked is, how can we refresh our success? Like after a number of days or months, we forgot about the struggle story behind the success and start getting worried about the other matters. So how can we keep our success fresh? Okay, I got a question. Thank you very much for this question that you asked. The answer is quite simple. याद रखिए, आप जब भी अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करते रहते हैं, आप कामयाबी समेटते रहते हैं. ये ऐसे ही है जिस तरह बस औक़ात कहा जाता है कि जो आपकी मोटिवेशन होती है ना, जब हम किसी से गुफ्तगू सुन रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं, तो हमारे अंदर एक स्पार्क पैदा होता है. स्पार्क पैदा होता है जो हमें हमारे लिए ड्राइविंग फोर्स होता है आगे ले जाने के लिए. लेकिन याद रखिए कि कामयाबियों को सस्टेन करना और रिटेन करने का बेहतरीन तरीका ये है, the best way out of difficulties is through it. Yes, better unborn than untaught. आप डिफिकल्टीज में जब थ्रू करते हैं अपने आप को, आप जब अपने आप को उसके अंदर ढाल लेते हैं, ठीक है ना, तो आप अपने सक्सेस को फ्रेश रखते हैं. ठीक है ना. जितना आप अपने आप को इसके साथ एंगेज रखते हैं, हेल्थ एक्टिविटीज के साथ, लर्निंग के साथ, अपनी पर्सनैलिटी की डिस्कवरी के साथ, अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के साथ, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ, देखिए ये ऑनगोइंग प्रोसेस है. अगर आप ये कहें ना कि ये एक गुफ्तगू से हमें ये आ जाएगा या मैं थोड़ी सी मेहनत करूंगा, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है. और रोजाना के एतबार से न्यू एक्सपीरियंस, आपका एक्सपोजर. अच्छा, एक बात और याद रखिए, एक है आपका एक्सपीरियंस. आई डू रिस्पेक्ट, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, लेकिन आपके एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा आपका एक्सपोजर मैटर करता है. अपने आप को डिफरेंट सिचुएशन में ढालिए. यस, जितना आप अपने आप को डिफरेंट सिचुएशन में, टफ सिचुएशन में लेके जाते हैं और आप वहां से खुद अपने आप पर मेहनत करते हैं, उसको वहां से अपने को जंप आउट करते हैं, तो आप सक्सेस को रिटेन रखते हैं. तो सक्सेस की रिटेंशन आपके अपने हाथ में है. Thank you very much, sir. The next, so can I please carry on if you have finished? Yes. Okay. The next question is, how can we tackle the people who used to give us a negative projection about our education, about our status, our career, or even sometimes about our job? How can we tackle these people? Oh yes, thank you very much. I got the question properly. Again, the answer is quite simple. जिंदगी में बहुत से लम्हात में ऐसे लोग मिलेंगे आपको. Again, if you give me the liberty to start from myself as an example, I'm the person. मैं इससे डसा हुआ हूँ. Yes, वो याद पड़ता है कि जब हमने इस इंडस्ट्री में जाने की, अब्दुल सलाम साहब मुझे बहुत अरसे से जानते हैं और हम वो लोग हैं, मैं अपनी जाती बात करता हूँ, जो स्क्रैच स्टार्ट किया था. मुझे जिस कदर धुतकारा गया था, मैं आपको यकीन से बताऊं, मेरे अंदर उतनी एनर्जी ज्यादा है, मेरे अंदर वो जो तवक्कुल का एलिमेंट था बहुत ज्यादा था. यस, मुझे मेरे घर से भी कहा गया, ये आपकी फील्ड नहीं है, आप इसमें एक्सेल नहीं कर पाओगे. ठीक है ना. मुझे कहा गया आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं. और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अल्लाह ताला ने वहां से रास्ते खोले कि मैं आपको बता नहीं सकता. राइट नाउ, beside the government of Punjab training department and the Azad Kashmir for youth empowerment, right now मैं आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज. हेलो. जी सर, we can hear you. Right now I have been selected as far as the youth sports and youth affairs ministry.
yes, अभी रमजान में यूथ मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स पंजाब यूनिवर्सिटी स्लो आपको भरने की शक्ति है, आपके अंदर एक ताकत रखी हुई है, उस ऑप्टिमिज्म को आप ना होने दें। मैंने कहा था कि जब आप अपने सेल्फ एक्सप्रेशन का डिनाई करती हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। डोंट नीड टू गो फॉर दैट, कीप योरसेल्फ रिलैक्स, डोंट नीड टू गो फॉर द पैनिक। अब पैनिक जोन में आप रिलैक्स रखें, मेहनत करते रहें। जब पानी खड़ा हो जाए तो क्या होता है, पानी में ताफुन पैदा I think Sajid साहब जो हैं वो disconnect हो गए हैं. Anyhow, I would like to extend a huge gratitude to Mr. Sajid on behalf of PIPA Faisalabad Branch Committee. Thank you so much for sparing your precious time. So Sajid Saab, thank you very much for sparing your precious time today to conduct this session. Thank you, thank you Finally, for we have with us. Welcome. So, ladies and gentlemen, finally, we have with us convener PIPA. सलाम as well. आप तमाम अफराद का बहुत शुक्रिया कि मुझे ये चांस मिला कि मैं अपनी बात आपके सामने रख सकूं, और इट्स माय प्लेजर कि आप जैसे लोग जो माशाल्लाह अपने अपने डोमेन के अंदर बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो इट्स रियली गुड फॉर मी एज वेल एज अ ट्रेनर. थैंक यू वेरी मच. Thank you. Thank you very much, sir. So, my dear listeners, we have with us convener PIPA Faisalabad Branch Committee, Mr. Abdul Salam. I would like him to present a formal word of thanks to all. So, over to you, Mr. Abdul Salam. Thank you very much, Ms. Kaval. Excellent, excellent, and excellent. Bundle of thanks and much appreciated to Mr. Sajid Hafiz. Delivered a very informative and motivating speech today. I am very delighted. I have in contact with him many years ago and regularly viewing his professional activities over the social media. And Mr. Sajid Hafiz actually have many credentials with him, and the very prominent is the Presidential Award from Azad Jammu and Kashmir. The training industry in Pakistan, is growing recently, and we have found very hardworking and smart professionals like Sajid Saab. On the behalf of PIPA Faisalabad Branch Committee, I would like to thank you for coming and interacting with accounting professionals. और जो साजिद साहब ने एक बात जो कही अपने उससे बाहर आना जो आपका होता है कंफर्ट जोन, उसके हवाले से जो उन्होंने बात की है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि कोई भी बंदा जो है वो तरक्की नहीं कर सकता और कामयाबी की मंजिल नहीं तय कर सकता जब तक कि वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आता. और एक बात जो उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर कही कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सबसे अच्छा इंसान वो है जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है. मैं समझता हूँ कि आज मेरे लिए ये दोनों चीज़ें अगेन एक रीइंफोर्समेंट है कि मैंने इन दो चीज़ों के ऊपर अमल दरामद करना है. और पार्टिसिपेंट्स के लिए कि ड्यूरिंग कोविड टाइम्स we are actually best positioned to learn conveniently through webinars online, and accountants should come forward and learn soft skills. As convener PIPA Faisalabad Branch Committee, we are aware of your professional needs and we will assure you that in coming days and weeks we'll bring some more CPDs on technical and soft skills. With this, I would like again thanks to the PIPA management, especially to Ms. Kaval, Naeem Saab, Ali Usja and others to organize such an informative event. And thank you very much all the participants to join us today. Thank you very much, and over to Ms. Kaval. Thank you very much, sir. So once
again, thank you very much, everyone, for joining us today over here. So I am just signing out. Take care. Allah Hafiz. Allah.